Hello students. Now the next topic in this chapter is atomic models of an atom. Until now we had done the discovery of electron, discovery of proton and discovery of neutron. But now the next is atomic models. Means जो हमारे पास atom है, what type of model it is, means what type of shape does it have. Right, so that different models which suggest the structure of the atom, that different models are Thomson's model of atom. Then second model was given by Rutherford, so named as Rutherford's model of an atom, and next model is given by Bohr's, so that's named as Bohr's model of atom. Right, now the first model, which is Thomson's model of an atom. Right, so what does this model of an atom suggest? What are its postulates? Which important points this model gave? Right, so Thomson's postulated the different points, and the first one is that an atom is regarded as positively charged sphere in which protons are present. ठीक है ना, देखो जो थॉमसन है उन्होंने जो मॉडल दिया था ना, he compared his that model with watermelon. He compared that model of him with watermelon. Now you know what is watermelon? That all the red part in that watermelon, जितना भी वो सारा उस watermelon में जो red part था, that red part is considered as a positive sphere. ठीक है ना, मीन्स उस watermelon का जो भी जितना भी उसका red part था, उस सारे के सारे red part को उन्होंने क्या consider किया as positive sphere. राइट, एंड जो उस रेड पार्ट में सीड्स होते हैं, राइट, देयर आर मीन्स उसमें जो सीड्स होते हैं, दैट सीड्स आर कंसिडर्ड एज नेगेटिवली चार्ज्ड. उन्होंने कहा कि वो सीड्स है वो है नेगेटिवली चार्ज्ड जो उस वाटरमेलन में जिनको एम्बेड करके रखा है, जिनको उस वाटरमेलन में डाल के रखा है. ठीक है ना, सो उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एटम भी वैसे ही है वाटरमेलन की तरह, सारे का सारा एटम है जो उसको उन्होंने क्या कह दिया, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर. ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में क्या होगा, प्रोटॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैट स्फीयर. और वो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्होंने किनको कहा था, सीड्स, जो उस वाटरमेलन में सीड्स प्रेजेंट होते हैं. उस वाटरमेलन का पूरा रेड पार्ट उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर कहा, उसमें जो सीड्स हैं उनको उन्होंने नेगेटिवली चार्ज कहा. ठीक है ना, तो एटम को भी ऐसे ही बोला कि सारे का सारा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो उन्होंने एम्बेड करके रखे हुए. ठीक है ना, सो ही कंसिडर्ड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, कि सारे का सारा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसमें कुछ का नेगेटिव चार्ज है जिनको उसमें रखा हुआ है. ठीक है, सो द पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. And that positive and negative charge they balance each other, because it is said that जो atom है वो electrically neutral है. Neutral means the जितने number of positive charges है उतने ही number of negative charges है. Right, so that's why he said that जो atom है it is electrically neutral. Right, so these are the points which are given by Thomson to give the structure of atom. This model is also known as watermelon model or plum pudding model, raisin pudding model, means these different types of names are given to this model. Okay, but this model was not so satisfactory, means in जो explanation दी that was not too satisfactory, that is not up to the mark. So here are some limitations to this model, which are that he did not explain that how positively charged particles are shielded from the negatively charged particle. कि जो हमारे पास positively charged particles है जो उस पूरे स्फीयर में प्रेजेंट है, नेगेटिव पार्टिकल्स है वो उनको कैसे शील्ड कर रहे हैं, वो उनमें से कैसे क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है ना, उन्होंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया. दिस वॉज द लिमिटेशन, ये उनके इस मॉडल की कमी थी. ठीक है ना, और ये मॉडल इतना सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं था, सो दैट्स वाई दिस मॉडल फेल्ड. Then the next study related to the structure of atom, it was made by Sir Rutherford. Okay, and the experiment which Rutherford used to find the structure of the atom, it's named as Rutherford's alpha particle scattering experiment. Right, मैंने आपको पहले भी बताया था in the last video that सबसे पहले the discovery that was done, it was of electron. Then the discovery of proton was made, then the discovery of nucleus was made, then neutron was discovered.
right? Electron was discovered by J.J. Thomson, right? And proton was discovered by E. Goldstein, and neutron was discovered by Chadwick. And this nucleus, इसकी जो discovery की थी, that discovery was done by Rutherford. Okay. So Rutherford's alpha particle scattering experiment leads to discovery of nucleus. So here the alpha particle that is used, what is that alpha particle? Alpha particle is helium ion, right? And this alpha particle, it is high energy particle, means it has high energy, and this alpha particle is of positive charge. Okay, so this is high energy positively charged. Which ions are here? Helium ions are here. So high energy positively charged helium ions are used here, which are known as alpha particle. Okay, and this helium particle, it has charge of +2 and mass is 4u. Means it is heavily, it is of high energy. High means इसका जो mass है that is very high. Okay, and it is positively charged. So जो ये alpha particle experiment किया गया था, what was done in this? Here a lead block, ठीक है, means जो lead से बना हुआ box है, black color का box होता है, that is being taken over here, and in that alpha particle source is being placed. Alpha particle source from which alpha radiations will come out, right? One of that example of alpha particle source is of radium, right? That radium, it radiates the alpha particles from it, right? So then alpha source, it emits so from here we get the alpha particles. ठीक है ना, यहाँ पे जो lead block है, in this the radioactive substance like radium is kept, and that substance, it emits the alpha particle. Then this alpha particle, after passing through this slit, it strikes the gold foil. Okay, the metal that is being placed over here is gold, and here is a यहाँ पे fluorescent screen, ठीक है ना. Here a fluorescent screen which is then coated with zinc sulfide. Fluorescent screen coated with zinc sulfide, it is being kept over here, and this is in the circular shape, right? When alpha particles are emitted from this source, it strikes this gold foil, right? Then after striking this gold foil, these radiations, they strike this zinc sulfide fluorescent screen. इस screen पर जाकर वो radiations क्या करती हैं? Strike करती हैं, right? So what is the function to use this zinc sulfide detector over here? When these radiations, they strike this zinc sulfide detector, then this fluorescent screen, ये जो zinc sulfide screen यहाँ पर use कर रखी है, it begins to glow, right? When the radiations which are coming from this source, it strikes the gold foil, then these comes to the zinc sulfide fluorescent detector, right? Means यहाँ पर फिर वो radiation strike करती हैं, then that part of that fluorescent screen, it begins to glow. And then from there we get to know that यहाँ पे इस metal से जो जब source से जो alpha particle strike हो रहा है, then where does it strike? That how much radiations are going straight, कितनी rays उसमें से सीधी पास हो रही हैं, how much are deflecting at small angles, and how much are deflecting at large angle from that point where that gold foil is kept. ओके, मीन्स सो आफ्टर स्टडिंग दैट डिफ्लेक्शंस, उन डिफ्लेक्शंस को स्टडी करने के बाद, जो रेडिएशंस इस गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक करने के बाद इस फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करती हैं, मीन्स वो कुछ रेज है जो दैट pass straight, some of them they deflect at small angles and some of them they deflect at large angles. So we study that deflections, and then after observing that deflections, some conclusions are being made about the structure of atom, and then that conclusion was made by the Rutherford. So when the radiations they struck the gold foil, then these type of deflections were taking place, which were observed when that radiation struck the zinc sulfide फ्लोरेसेंट स्क्रीन, राइट? मीन्स जो हमारे पास अल्फा सोर्स से रेडिएशंस आई थी, दे वर स्ट्राइकिंग गोल्ड फॉयल, और फिर नेक्स्ट हमने जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी हुई थी. सो दीज रेडिएशंस वर कमिंग, सम ऑफ देम वर कमिंग स्ट्रेट, some of them were deflecting at small angles and some of them were deflecting at large angle. Like here, when that radiations were coming down, here we can see that most of the radiations were passing straight. कुछ तो मीन्स ज़्यादातर जो रेडिएशंस थी दैट वर पासिंग स्ट्रेट, मीन्स अनडिफ्लेक्टेड, उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो की, they just passed straight away from that.
बट सम रेडिएशंस दे आफ्टर स्ट्राइकिंग द एटम, गोल्ड फॉयल को स्ट्राइक करने के बाद जब वो जिस पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक की जिंक सल्फाइड की, दैट शो स्मॉल डिफ्लेक्शन, मीन्स वो उससे थोड़े से दूर जाकर क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी, मीन्स दैट शोन स्मॉल डिफ्लेक्शन, राइट. बट सम ऑफ देम शोन लार्ज डिफ्लेक्शन, कुछ तो स्मॉल एंगल पर ही डिफ्लेक्ट हो रही थी, सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल एंड मेनी ऑफ देम वर गोइंग स्ट्रेट. Even some radiation, some rays were like that, after striking the atom they just moved back, means उन्होंने back scattering show की, right. So wherever alpha particles strike the zinc sulfide screen, means वो जो रेडिएशन थी उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर भी जाकर जहाँ पर भी वो स्ट्राइक करी थी, अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट, बिकॉज वो जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन थी दैट वॉज फ्लोरेसेंट स्क्रीन. वेन एवर लाइट रेज स्ट्राइक ओवर दैट स्क्रीन इट बिगन्स टू ग्लो. सो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड दैट रेडिएशन स्ट्राइक्ड ओवर दिस पॉइंट, right. So different observations during this experiment was that most of the जो alpha particle rays थी, means like nearly 99.9%, nearly 99% they passed undeflected, means वो सीधी पास होगी, there was no deflection in that radiations. And then what was about remaining 1%? Among that 1%, some of the alpha particles they deflected at small angles. ठीक है, यहाँ पे देखा ना, that these were deflecting at small angles, वो कुछ small angles पे ही deflect कर रही थी. 99% they passed straight, some of them shown deflection at small angle and some of them shown deflection at large angle, right. And very few alpha particles they were deflected by very large angle. And what was the numbering of them? It was 1 among 12,000, means अगर 12,000 alpha particles की जो rays ऐसे alpha particles were striking the zinc sulfide screen, among that only one alpha particle was that which shown deflection at large angle. ठीक है ना, मीन्स जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे वो जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर फिर स्ट्राइक कर रहे थे, अगर हम उनमें से 12,000 की नंबरिंग में से देखें, देन मोस्ट ऑफ देम शोन द पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, उनमें से कुछ थे दैट शोन डिफ्लेक्शन एट स्मॉल एंगल, बट जस्ट ओनली वन अमंग देम इट वॉज डिफ्लेक्टिंग एट लार्ज एंगल, मीन्स 12,000 में से सिर्फ एक ही ऐसा अल्फा पार्टिकल था कि जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था. ठीक है, और इट मे बी डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल और इट रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग देयर पाथ, मीन्स उन्होंने बैक स्कैटरिंग करती, सीधे उसे स्ट्राइक करके वापस से चला गया, उसने लार्ज एंगल पे भी डिफ्लेक्शन नहीं शो की. सो नियरली 99% जो रेस थी दैट पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, वो सीधी पास हो गई, राइट. एंड फ्रॉम रिमेनिंग 1% सम ऑफ देम शोन स्मॉल डिफ्लेक्शन and some of them shown large deflection, and the alpha particles which show large deflection, it was one particle among 12,000, right. So what conclusions were made from these different observations, right. They are like जो हमारे पास 99% अल्फा पार्टिकल्स थे दे पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, वो उस में से दे जस्ट पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, वो सीधे पास होगी. इट शोन दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, मीन्स जो एटम था उसमें जो ज़्यादातर स्पेस थी दैट इज एम्प्टी, वो खाली जगह उसमें एटम में. सेकेंड, अल्फा पार्टिकल्स है जो दे आर पॉजिटिवली चार्ज, राइट, मीन्स दे हैव कंसिडरेबल मास, उनका मास भी ज़्यादा है, हाई एनर्जी है, राइट, एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज and they could be deflected by heavy and positively charged center only, means अगर वो deflect back हो रहे हैं small angle पर तो वो कब होंगे, if these alpha particles are striking that type of substance which is also of considerable mass along with alpha particle, right. So it means that presence of heavy positive center in the atom. स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रही है जब अल्फा पार्टिकल खुद इतना हैवी मास है उसका, मीन्स वो डिफ्लेक्ट तभी होगा इफ़ इट इज़ स्ट्राइकिंग टू समवन विच इज़ ऑफ कंसिडरेबल मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, जिसका मास भी उसी के कंपैरिजन में होगा. सो विच कंक्लूड फ्रॉम हियर रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिव सेंटर इन इट, राइट, एंड रदरफोर्ड नेम्ड दिस पॉजिटिव सेंटर एज न्यूक्लियस. देखो बेटा, जो अल्फा पार्टिकल है उसका खुद का मास इतना हैवी है, हाईली चार्ज है, हाई एनर्जी है, पॉजिटिवली चार्ज है, अगर वो
अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक हो रहा है अगर स्मॉल एंगल्स पे, तो कब होगा, मीन्स अगर वो कुछ ऐसे सब्सटेंस के साथ स्ट्राइक कर रहा है जो उसके कंपैरिजन में उसका मास हो, उसी से डिफ्लेक्ट करेगा ना, अगर उसका जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है उसका मास भी इसके कंपैरिजन में हो। सो फ्रॉम हियर जो रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया कि एटम में कुछ हैविली चार्ज्ड सब्सटेंस है वो उसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता फिर अल्फा पार्टिकल्स तो पॉजिटिव थे, तो उसने क्या करना था, उस पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना था, बट दैट अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ पर वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे, दे आर डिफ्लेक्टिंग बैक। इट मीन्स वो जो सब्सटेंस है वहाँ पे वो भी पॉजिटिव चार्ज का होगा, तभी वो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कंसिडर दैट देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी हैवी एंड इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और उसको क्या नाम दे दिया है, न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच वर डिफ्लेक्टिंग एट लार्ज एंगल दे वर वेरी स्मॉल इन नंबरिंग, मीन्स अगर 12,000 में से सिर्फ एक ही ऐसी अल्फा पार्टिकल था जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट बैक हो रहा था, सो इट मीन्स दैट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हैवी पॉजिटिव सेंटर इट विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। मीन्स जो हमने यहाँ पे कहा ना कि हैवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उस एटम में प्रेजेंट, तो वो सिर्फ वो बहुत ही इट इज़ प्रेजेंट ओवर इन द एटम इन वेरी स्मॉल स्पेस, राइट। देखो जो फर्स्ट पॉइंट क्या कंक्लूड किया था कि जो एटम है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन दैट एटम इज एम्प्टी, राइट, एंड सम हैवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इज प्रेजेंट इन द एटम, एंड दैट हैवी पॉजिटिवली चार्ज जो सेंटर एटम है इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल स्पेस। Okay, so these were the explanation of the observations which were made by Rutherford's model. So then that heavy positively charged center जो atom के center में present है it is named as nucleus, right? So then that's why Rutherford's this model is also known as Rutherford's nuclear model, because it leads to the discovery of nucleus. So what are the different points which were given by this model? It is that एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एटम है इसमें दो पार्ट्स है, व्हाट आर दैट टू पार्ट्स, वन इज न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड अनदर इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन विच इज आउटर पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस। सेकेंड इज दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, एंड देन इट इज सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। इफ दिस इज द एटम, राइट, एंड हियर इज द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, राइट, सो व्हाट इज सेड दैट इस न्यूक्लियस का जो साइज है इट इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द साइज ऑफ द एटम। ओके, हियर आई हैव शोन यू दैट जो एटम है, इस पूरा एटम है, रेडियस ऑफ दिस एटम इज 10 raised to power -10 and radius of this nucleus is 10 raised to power -15 meter. Okay, so dividing these two ratios, radius of atom upon radius of nucleus, radius of atom is 10 raised to power -10 meter and radius of nucleus is 10 raised to power -15 meter. यहाँ पर it is -15, when I'll take it in the numerator it will change to +15, so -10 and +15 it will change to 5. It means the radius of atom upon radius of nucleus equals to 10 raised to power 5, right? So taking radius of nucleus to that side, it means जो atom का radius है वो nucleus के radius के कितने times है, 10 raised to power 5. 10 raised to power 5 means 1 along with 5 zeros. So radius of atom is 1 lakh टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। सो जो एटम का साइज है इट इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस, मीन्स एटम का साइज न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। हियर इट इज रिटन दैट कि जो न्यूक्लियस का साइज है, हियर इट इज दैट रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 1 lakh टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस के रेडियस को अगर हम 1 lakh से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम इक्वल्स टू रेडियस ऑफ एटम। सो हियर वी कैन इमेजिन कि कितना छोटा साइज न्यूक्लियस का है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द एटम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना। जो हमारे पास एटम है उसमें जो न्यूक्लियस है सारे के सारा जो मास है एटम का वो इसी न्यूक्लियस में कंसनट्रेटेड है,
ठीक है। और जो ये जो न्यूक्लियस है, व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। दीज टू आर प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियस, और इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। Okay, if it is asked what is nucleons, then protons and neutrons which are present in nucleus collectively are known as nucleons. Then the electrons are present in the space around the nucleus. Nucleus के around में जो space है, in that space what is present, electrons are present. Then electrons around the nucleus are revolving at high speed following a circular path. जो nucleus के around में जो space है, electrons are present are there, and electrons are revolving around that nucleus at very high speed, and the path which they follow to revolve around the nucleus is the circular path. Okay, so these are the postulates, these are the important points which were given by the Rutherford to show the structure of atom, that what type of structure does an atom possess, right? Like Thomson has given the model, there were some limitations in that model also, and this model is given by Rutherford. Some important points are also given, but even then there are some limitations of this model. What are that limitations? देखो, मैक्सवेल ने हमें क्या कहा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मीन्स इफ एनी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, देखो हमने यहाँ पे क्या बात की कि जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिवॉल्विंग, ठीक है, एट वेरी हाई एनर्जी। तो मैक्सवेल ने बोला कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है और वो भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इट मीन्स इट रेडिएट्स एनर्जी। इसका मतलब वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में हाई एनर्जी में रिवॉल्व कर रहे हैं, देन व्हाट हैपन, इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करेंगे एंड दे विल लूज एनर्जी। तो क्या होगा, एट वन पॉइंट व्हेन दे विल लूज एनर्जी, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, मूव करते करते जब उनकी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, दे विल कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस, है ना। हमने ऐसे ही बोला ना कि न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और मैक्सवेल बोल रहा है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है हाई एनर्जी हाई स्पीड के साथ, तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करेंगे, देन व्हाट विल हैपन कि वो इस पाथ से वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो इस न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएंगे, वो इस न्यूक्लियस में मिल जाएंगे, और जो एटम है वो डिमिनिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बट दिस डज नॉट हैपन, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है। सो वाई डज दिस डजेंट हैपन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे रिवॉल्व कर रहा है और फिर वो जाकर न्यूक्लियस में मर्ज क्यों नहीं हो जाता जब उसकी एनर्जी लूज हो रही है, ठीक है ना। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पॉइंट, दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड, सो दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड, राइट। इट मीन्स दैट रदरफोर्ड हैज गिवन नो रीजन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, मीन्स इस रीजन के बावजूद जो एटम है दैट इज एग्जिस्टिंग, सो वाई इट इज एग्जिस्टिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द रीजन फॉर इट्स स्टेबिलिटी टू गेट एग्जिस्ट, सो दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड। सेकेंड पॉइंट which is not explained by the Rutherford is about the distribution of the electrons around the nucleus, कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखी है, हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, दैट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉट गिवन बाय रदरफोर्ड। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड, मीन्स ये उनके मॉडल की कमियाँ थी कि दैट ही डजेंट मेंशन एनीथिंग अबाउट दीज 2 points। ओके, सो दिस वॉज रदरफोर्ड्स मॉडल and these limitations, जो रदरफोर्ड की limitations थी, these were then overcome by Bohr. Okay, so that we'll do in next part. Okay, thank you.